continue the chapter The Lost Child. But before that, let me give you a quick summary of the first part of The Lost Child. So what we have seen in the last video? That The Lost Child is the story is about a child and his parents who are going to a fair. एक small child है अपने parents के साथ कहाँ जा रहा है? एक fair में, मेले में. On their way to the fair, the child sees a toy shop and asks his parents to buy him a toy. But his father stared at him and he understood the father's silent no. So रास्ते में बच्चे ने क्या देखा? शॉप देखा टॉय का और खिलौना खरीदना चाहता था, लेकिन उसके फादर का उसने समझ गया जो साइलेंटली वो सीधे नो बोल देते थे कि नो. Then to divert his mind, his mother called him up to the mustard field. So you remember कि उसकी मदर ने उस चाइल्ड का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए किस और उसका ध्यान आकर्षित किया? मस्टर्ड फील्ड की ओर कि देखो कितना सुंदर सा खेत है मस्टर्ड का, सरसों का. The child saw various things on his way to the fair, such as insects, doves, butterflies and so on. So you might be remembering कि रास्ते में उसने बहुत सारी चीज देखे. क्या क्या देखा? Insects देखा, dove, butterflies and so on. In the fair also, he sees various things such as sweets and balloons, but he didn't request his parents because he knew what would be the reply. तो मेले में उसने बहुत सारी चीज देखे, जैसे कि स्वीट्स, बर्फी उसका बहुत ही फेवरेट स्वीट था ना, यू रिमेम्बर. एंड बैलून्स को देख के उसे रहा नहीं गया कि नहीं मुझे बैलून्स खरीदना ही खरीदना है. बट ही डिड नॉट रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स. उसने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट नहीं किया. बिकॉज क्यों नहीं किया? बिकॉज ही वाज नोइंग कि उनका रिप्लाई क्या होगा? नो. सो ही murmured and moved on. On reaching the roundabout, he couldn't resist himself and made a bold request, saying that he wants to go on the roundabout. तो resist का मतलब होता है stop. On reaching the roundabout, जब झूले के पास वो जाता है तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और एक बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स को कि उसके झूलना है राउंड में. And when he turned back for the reply, his mother and father were not there. और जैसे ही वो turn back होता है तो वो देखता है कि उसके father और mother वहाँ पे नहीं है. He was confused and ran here and there. वो पूरा confused हो गया, डर गया और यहाँ वहाँ भागने लगा. तो till here we have done these in the previous video. So now we'll continue the chapter. Having run to and fro in a rag of running for a while, he stood defeated, his cry suppressed into sobs. तो having run to and fro, यहाँ वहाँ वो दौड़ रहा है, अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है. In a rag, fit of anger, उसे गुस्सा भी आ रहा है. He stood defeated. Defeated means वो कभी कभी खड़ा हो जा रहा है जब वो लग रहा है कि वो हार गया, वो अपने पेरेंट्स को नहीं खोज पाया. His cry suppressed into sobs. Sobs का मतलब क्या होता है? सोबिंग करना. Cry very slowly. जब बच्चा बहुत ज्यादा रोते रोते थक जाता है तो फिर क्या होता है? हम लोग धीरे धीरे रोने लगते हैं, सिसकने लगते हैं. At little distances on the green grass, he would see through his filmy eyes men and women talking. कुछ दूरी पे उसने क्या देखा? On the green grass, he would see through his filmy. Filmy का मतलब यहाँ पे क्या है? Having a thin layer of water. मीन्स उसके आंख में क्या है? आंसू भर गए हैं. और उसने देखा कि कुछ लोग जो है men और women बातें कर रहे हैं. He tried to look intently, very carefully. वो कोशिश किया देखने के लिए among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. तो वो बहुत कोशिश किया, ध्यान से देखने का कोशिश किया कि शायद उसके फादर मदर उनके बीच हो और उसे दिखाई पड़ जाए. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और इसे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है. उन लोगों को देख उसे ऐसा लग रहा है कि वो लोग बेकार ही बिना वजह का हंस रहे हैं, टॉक कर रहे हैं. He ran quickly among again, this time to a shrine. Shrine का मतलब क्या होता है? टेम्पल. अभी वो भाग के कहाँ जाता है? टेम्पल. To which people seem to be crowding. और उस टेम्पल में भी लग रहा है कि लोग जो हैं एकदम appeared. seem का मतलब appeared to be crowding. भीड़ जमा हो गया है. Every little inch of space here was
congested means full of with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering, father, mother. So every inch, एक एक इंच का जो स्पेस है वो पूरा फुल है किन लोगों से, मेन से, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा जगह से थ्रू द पीपल्स लेग, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, वो अंदर घुसते जा रहा है, his little sob lingering, और धीरे धीरे वो रो रहा है, father, mother, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick, और जो crowd है बहुत ही ज्यादा है. Men jostled means push कर रहे हैं. You people also can imagine जब हम लोग कहीं भीड़ में जाते हैं तो कैसे लोग push करते हैं each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty का मतलब क्या होता है, strong and heavy shoulders. तो वहाँ पे बहुत भारी भरकम भी मेंस हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं. The poor child struggled to the thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother. So the poor child struggled, किसी तरह से वो मतलब कि किसी कोशिश कर रहा है, to push away between their feet, उनके पैर के पास किसी तरह से ढकेल के पुश करके वो कोशिश कर रहा है निकलने का. Knocked to and fro by their brutal का मतलब क्या होता है, harsh, rough movement. He might have been trampled मतलब crushed, कुचल जा सकता था उनके बीच, अगर वो he would not strike at the highest pitch, अगर वो जोर से नहीं चिल्लाता. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry. तो एक व्यक्ति जो है, एक आदमी जो है, in the surging means moving forward crowd, heard his cry and stooping का मतलब क्या होता है, bend forward, with great difficulty lifted him up in his arm. बहुत ही मुश्किल से झुक के bend forward, वो बहुत ही मुश्किल से उसको अपने बाहों में ले लेता है. Now, how did you get here, child? वो पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए? How did you get here? Whose baby are you? किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. वो भीड़ से थोड़ा हटके ये सब बातें पूछ रहा है. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. वो और जोर से रोने लगा. Child wept more bitterly. आप लोगों को भी जब आप लोग रोते हैं या कोई कर कुछ पूछता है कि क्या बात हो गया है, तो उस समय हम लोग भी क्या कर लेते हैं, और जोर जोर से रोने लगते हैं. The same as the child also started crying more bitterly. और बस इतना ही बोल रहा है, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Man जो है उसको pacify करने के लिए, relax करने के लिए, अब वो कहाँ उनको ले जाता है, राउंड अबाउट, जहाँ पे झूला था, जहाँ पे वो खोया था अपने पेरेंट्स से. Will we have a ride on the horse? वो झूला को दिखाते हुए वो बोल रहा है कि क्या तुम हॉर्स में राइड करोगे, इस झूले में राइड करोगे. He gently asked as he approached the ring. जैसे वहाँ पे पहुँचता है वो पूछता है. The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो चाइल्ड का जो थ्रोट है, जो गला है, वो और जोर से शार्पली सिसकने लगता है और चिल्लाता है. He shouted कि नहीं, मुझे केवल मेरी मदर चाहिए, मेरे फादर चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Now, अब वो जो आदमी वो सोच रहा है कि किसी तरह से इस बच्चे को किसी चीज में अट्रैक्ट करके वो उसे चुप करा दे. इसलिए जब वो झूला के पास भी नहीं चुप हुआ तो कहाँ ले गया, स्नेक चार्मर के पास, जहाँ पे वो स्नेक वाला सपेरा था, जो अभी भी वो अपना ये बजा रहा था. So he just saying कि listen to that nice music, child. He pleaded. वो रिक्वेस्ट करता है कि देखो बच्चे ध्यान से सुनो सपेरा जो बजा रहा है. But the child shut his ears. Now you just remember, उस समय वो कितना ध्यान से सुन रहा था उस सपेरे का बीन, जो वो बीन बजा रहा था.
लेकिन अब वही आवाज उसी बीन को जब वो व्यक्ति सुनने के लिए बोलता है कि देखो कितना अच्छा से वो बजा रहा है, कितना सुरीला बजा रहा है, तो अपने कान ईयर्स जो है अपने फिंगर से बंद कर देता है और सुनना नहीं चाहता है। एंड शाउटेड हिज डबल पिच, डबल जोर लगा के चिल्लाता है, स्ट्रेन, लॉट ऑफ फोर्स, पूरा फोर्स लगा के, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. अब जब चाइल्ड वहां भी सपेरे के पास भी नहीं चुप हुआ, तब उस व्यक्ति ने कहा ले गया, बलून वाले के पास, ये सोच के कि वो जो कलर्स है बलून के, उसके कारण वो बच्चा है जो उसका ध्यान बलून्स में चला है और वो चुप हो जाए। लेकिन अब पूछता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? बोलता है, क्या मैं तुम्हें एक बलून दिलवा दूं? He persuasively to make somebody believe something. यहाँ पे ही persuasively का मतलब क्या होता है? convincing means किसी को believe करना, किसी believe करवाना, कि चुप कराने के लिए। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. तो child जो है वो फिर से बोल रहा है, अपना आंखें जो है वो फ्लाइंग बलून से हटा लेता है, बलून की ओर से हटा देता है और सिसकते हुए केवल बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइड टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। जो व्यक्ति था वो फिर कोशिश कर रहा है उसे चुप कराने का, और अब देखो वो कहाँ ले गया है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, वो बोल रहा है, द मैन ट्राइड स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। Bore means carried him to the gate where the flower seller sat. अब गेट के पास वो ले जाता है जहाँ पे वो फूल वाला था। Look, can you smell those nice flowers, child? क्या तुम्हें वो flowers smell कर रहे हो? Would you like a garland to put around your neck? अपने गले में पहनने के लिए एक garland, एक माला खरीदने चाहिए तुम्हें? The child turned his nose away from the basket and reiterated means repeated his soap. वो जो अपना नाक जो है, देखो वो बच्चा क्या कर रहा है, वही स्मेल उसको कितना अच्छा लगा था वो फ्लावर। और अब जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं फ्लावर तुम्हें दिलवा देता हूँ गले में पहनने के लिए माला, अपना नोज हटा लेता है और फिर से वो सिसकने लगता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. आप देखिए कि एक एक करके वो जितना चीज जो उसके पेरेंट्स ना बोल दे रहे थे, एक एक करके वो व्यक्ति उनके पास ले जा रहा है। इस बार वो thinking to humor means being able to keep somebody happy by doing what he or she wants. means कुछ ऐसा वो करना चाह रहा है ताकि वो बच्चा खुश हो जाए। His disconsolate means extremely unhappy. वो जो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी है, तो कुछ ऐसा वो व्यक्ति करना चाह रहा है ताकि वो बच्चा खुश हो जाए। और चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, वो सोच रहा है कि अब स्वीट्स देके उस बच्चे को चुप करा दे, खुश करे। The man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? वो पूछ रहा कि कौन सा मिठाई चाहिए, बोलो। He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. और वो बच्चा जो है फिर से अपना जो चेहरा है वो हटा लेता है और केवल बस यही बोल रहा है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे फादर चाहिए और मेरे मदर चाहिए। So we have just seen this chapter that the child was asking so many things by his parents, and his parents were just telling that no, they can't. And the same thing जब वो व्यक्ति उसको दे रहा है, तो फिर वो लड़का, वो जो छोटा बच्चा है, अब उसे क्या चाहिए, केवल उसके मदर और उसके फादर चाहिए। So we can just think the bond of the child with his parents. So now just you see these questions, I think you are able to do it. So the first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? In the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? Why does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? Fourth one is, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? And the fifth is, what do you think happened in the end?
does the child find the parents? So this answer you can just tell by your own that does his child find the parents or not. You can just say that the writer has kept the story ending open. We may say that the child met his parents. You people can write. Why? Because not only his child was just trying to find his parents. मेले में क्या होता है, अगर बच्चा खो गया तो बच्चा ही तो केवल नहीं पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, पेरेंट्स भी बच्चे को ढूंढ रहे हैं. तो we can just say कि at the last the child has find his parents. So this way we can just see the bond between the child and the parents. It might be happen कि कभी कभी होता है कि हम लोग के पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोग बच्चों के हर एक चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर एक चीज़ को हम लोगों को पूरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे का डिमांड क्या होता है, और बढ़ते जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए. सो we can just think कि in any way we can think कि पेरेंट्स हो सकता है पैसे की कमी के कारण भी नो बोल सकते हैं, नो चाइल्ड को बोल दिए होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नहीं चाहते होंगे कि हम लोग सभी चीज़ ही खरीद दें. बट देन ऑल्सो यू जस्ट सी द बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स. मीन्स वही चाइल्ड को अब जब सारे चीज़ उसे मिल रहा है, लेकिन उसका प्यार जो है, ही सो मच ही लव्ड हिज पेरेंट्स दैट नाउ ही डोंट वांट एनीथिंग, only what he wants his parents. So we end this story. Stay home, stay healthy.